And so we are just waiting for a few more people to join in. And we have also asked Hema Ji to join in. She is joining in very shortly, and we will have a very good conversation with her. The entire idea of this open house is to understand what is Madhubani art is. Many of you are aware of Madhubani painting, and you have done a lot of workshops with us and with Hema Ji. But a lot of you must be joining us first time. So to give you the overview, this is a workshop where we talk about the art, the story of art, interact with the artist, and also ask questions. When Hemaji will join, she will also showcase her paintings, what she has done, all other materials also like the patta and all. So you will get an overall idea about, what all can be done in the Madhubani painting. Nathan, do you want to show something, or I should talk about the styles of Madhubani painting and all? So I'm completely fine. We can start. And before we get started, hello everyone. A very, very warm welcome to you, and sorry to start a bit late. We were just getting organized, and we were hoping others will join, and I'm sure they'll keep joining. So in the field of Madhubani, there's so much that has been done. There's so much which actually we practice during the art workshops. So, but what really remains sometimes unnoticed is the story of Madhubani and the story of the artist and the story of the key challenges and the issues that actually face this art, like any other art here. And the intent really is to have an interactive discussion where we talk about many of these things, where we hear from you, your experiences, and your ideas also in terms of how we can perhaps do it better together. So with that, let me actually, first of all, show you a small video about the story of Madhubani. It's a very long video, but I'll kind of share maybe some parts of it with you. Yeah, let's get started here. And okay. मिथिला एक बहुत बड़ा देश था और ये उसके राजा जनक जी थे, उनकी पुत्री थी सीता। उनका नाम सीता भी था और वैदेही और मैथिली। तो जो मैथिली है उसी के नाम से ये मिथिला रखा गया। जहाँ हम लोग रहते हैं उस जगह को मिथिला कहते हैं। अब फिर यहाँ ये मिथिला में ये पेंटिंग शुरू हुई, तो इसीलिए इसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं और इसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। Okay. Now, with that, let me ask you, how many of you actually have been to Bihar, if you have been to? Anyone who is from Bihar? I know some of the people here who are from Bihar, but how many of you have been to Bihar? I have. Okay. Wow, Vinitaji, you have been to Bihar also. That's good. Yes. Wonderful. Where? Widely traveled. Wonderful. In Bihar. Sorry? But I am born in then Bihar, but now Jharkhand. Oh, where? Jamshedpur. Okay. Wonderful place. Wonderful. So the next set of questions that I'm going to ask, I'll probably put you on mute. Because you will know all the answers. Yeah. No, I had put myself on mute. But you said who's from Bihar? I mean, who has been to Bihar, not from Bihar. I'm just joking. See, essentially, first, many people like yourself obviously have a great knowledge, and the idea is that we should actually share this knowledge in an interactive way. Yeah? And we actually obviously keep on doing these small impromptu quizzes on WhatsApp group, as well as we kind of have these Google forms. This time we actually thought, let's go through some of the questions together and see that how much we actually know and how much we don't know. Yeah. So
If I were to ask all of you that we have heard of these different variants of Madhubani, we talk about Bharni, Kachni, Kohbar, Godna, which is the fifth one, by the way. Anyone? Tantric. Wonderful. Have you done any Tantric Madhubani? No, I have not. No. Okay. I think so far, if anyone has conducted a workshop on Tantric, it's actually Hema Devi. And you'll see that because Tantric is actually one of the rarest form of Madhubani that's kind of done, and it's not so much in vogue. Even from Hema Devi, she had to do a lot of research for Tantric because it's not commonly done now. Very few people do it. So she had to even talk to her mother, aunt, and everyone to understand the elements of Tantric painting because it's very sacred. So not everyone does it. Yeah. And while we are doing this, obviously, traditionally, each of these arts were associated with a specific caste. I mean, some of it was for good, some of it was obviously led to a lot of undesirable effect. But if you were to mix and match, what's the right combination that you see here between the art and the different castes? Which is the right one? Can you zoom it a bit? I can zoom it a bit for sure. Because yes. my screen is small. So we have Bharni done by the Brahmins, Kachni by the Kayasth, Godna by the Dusad, Kohbar is by the whatever, and all of them. Anyway. Can I answer? It will be a shame if you don't know the answer. Come on, I know the answer. Godana, I know is lower caste. All the I also above, know. the first three are correct, but about Kohbar, it is said that all the communities did it for at the time of the marriage. So Yes. Kohbar, I don't all of it later on, yes. Later on, yes. So Yeah. see, the right answer is yes. And this is what traditionally it started, right? And Yes, we'll ma'am, actually I'm here, Kautilya. we will share this with all of you. And I'm obviously not going to share all the answers. But if we किससे बात कर रही थी? दीक्षा से? in a connection of the 14th century Panji system, the system of the genealogical records to Mithila art. Anyone? And personally, I don't know the right answer for it, to be honest. So, What is the connection of 14th century Panji 14th century system? Panji system, which is a system of maintaining the genealogical records to Mithila art. So here I want to know what is the connection? Anyone who knows the actual answer, please feel free to unmute and say. I think it's the third one, laid down rules for upper caste women to paint certain themes, ritualistic symbols. Okay. Because there was some kind of respect for women there. And I think that's what I relate. I've read somewhere, but that's what I'm thinking. Okay. Yeah, because Sita ji also, I think Sita ji's dad, Janaka Raja, had a very different kind of respect for Sita ji. And he was also of the type who would definitely want to promote women for a lot of things. And I don't know somehow if I can relate that. And I've read something about that because. Okay. Yeah. That's a good, very nice perspective. Sandhya, what do you think? Sandhya? Yes. Hi. It was a way of keeping genealogical records. So it was
connected to how communities are, behaving. It was a way of looking to figure out how the society is, the society. Actually, what I know about the Panji system, these genealogical records were maintained so that close relationships are not do not happen. जैसे different gotras से लेते हैं. So these records were meant to check whether the prospective bride or groom is not closely connected. Absolutely. So, but its relationship to Mithila art, I don't know. But the Brahmins and the Kayas used to maintain that so that no intermixing is happening between the. नितिन, अगर हम हिंदी में बात करें तो हेमा जी भी हैं हमारे साथ, तो हाँ हाँ, अच्छा हेमा जी ज्वाइन कर लिया. नमस्कार हेमा जी. Nitin ji, one more. The previous answer was what? Other means the previous question's answer I missed out. So it was all the ones which you had put were right? Yes, and we will send this quiz to all of you after this. But you've not answered, no, yet, that means. You've not answered it yet, right? Yes. Okay. I thought I missed the answer and it was a very No. important question. So I wanted to know. Perfect. So this is actually a way for us to start the conversation, because I think the Panji system obviously is about the genealogical records. It obviously laid down a lot of rules, and personally, since I don't know the exact answer, I personally think it's a third one. Yeah, and we will explore some of these things more. And in general, we have seen that when we talk about the Madhubani art, we actually tend to see more women artists than men. Clearly, in the last 20, 30 years, there are a lot of men artists which are coming in. Any specific reasons why it has happened? The third answer is correct because all of the men from the villages had gone out. So mostly the women were left in the village with the ample time in their hands, and so they started drawing all the tradition on festive occasions and all. So I think that is. Okay. We'll see. And since we'll share this quiz anyway, we'll see all the right answers, and the conversations are more important than the right answers. And obviously government does a lot to support the women artists. Any specific one which actually encourage the women artists? Because see, Madhubani started as a on wall, right? And later on it went on to the different mediums, especially the papers, and then of course now we do the dupatta, saris and all. Which specific one? It's an easy one. The second one. Yes. Now with that, let me show you a small video, okay? Because the story of Madhubani, of course, we say that it is from the times of Ramayana, and obviously the King Janaka during Sita and Ram wedding asked that the scenes be painted. In reality, it went through a curve, and it's only in the last 50 years. There were two art activists. One of them is Pupul Jacker, another one is Mr. Kulkarni. They actually did a lot, but around the late 60s and the 70s, many things fundamentally changed. And of course, during the earthquake also, many of these paintings were actually uncovered. Let me show you something about it. Yeah. दबा कर रख नहीं सकते. मधुबनी कला का एक इतिहास ये भी है कि सन 1934 में जब बिहार में भयंकर भूकंप आया, तब अंग्रेजी अधिकारी W.G. आर्चर ने इस कला पर शोध करके दुनिया के सामने लाए, लेकिन इस कला को पूरी तरह दुनिया के सामने आने में 2 दशकों का समय और लगा. जब 60 के दशक में बिहार को एक भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा और उस वक्त भास्कर कुलकर्णी इस जिले में आए. And these videos we will share with you. But
there was an earthquake in 1934. And there was a British archaeologist and excavator, W.G. Archer, who actually discovered a lot of these paintings. But it still took 2 more decades, which is what we are saying, right? I mean, around the late 60s or something, that the art activists like Popul Jaikar and Sudhakar Kulkarni actually did a lot to bring Madhubani art into focus. Yeah. And then I think from 1980, I mean, it took almost another more decade for the government to kind of really start working out their schemes and the processes to support artists. And from 1980s and 90s, when it fundamentally changed. So clearly, I think there's a lot more to discuss and debate about the history and the context of Madhubani. As I said, we will share a lot of this, but in the meanwhile, Hema Devi has joined. So हेमा जी को स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि ये कहानी उनकी है. हम तो कहानी में बात करते रहेंगे, लेकिन हेमा जी कैसे हैं आप? आप म्यूट पे थे हेमा जी. हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है. तो हेमा जी, ये सेशन हर वर्कशॉप से अलग है, जैसा बात किया था कि इस बार हम कुछ आर्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं. जो आर्ट उसकी कहानी और आपकी जो कहानी है उसके बारे में है. तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो बातचीत हो, ये ऐसा हो कि लोगों को मधुबनी जो देखते हैं उसके अलावा भी सीखने को मिले. और आप जैसे आर्टिस्ट जो इतने दशकों से काम कर रहे हैं, आपकी जो कहानी है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब के बारे में बात हो, लोग आपसे सवाल पूछ सकें, लोग आपसे के बारे में जान सकें. तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा. और बाकी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं. लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ. हेमा जी, आप कब से सीख रही हैं और कब से कर रही हैं मधुबनी आर्ट? जब मैं 15 साल की उम्र में थी तभी से माँ के साथ करती थी. थोड़ा थोड़ा माँ बैठती थी तो माँ के साथ ले करके, दूसरा कोई रिजेक्ट पेपर पर मैं माँ के साथ अपना बैठ करके सीखना, बनाना. फिर माँ उसमें बताती थी कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. वैसे करते करते सीखी हूँ. अच्छा, तो जब आप अपने माँ के साथ बैठ के करती थी तो कोई मेथड होता था कि कैसे, मतलब कि साथ में बनाना शुरू कर दिया और सीख गए? नहीं, जैसे माँ बनाती थी पेंटिंग तो हम लोग को कुछ पढ़ाई तो उतना उस समय नहीं था, बहुत ज्यादा. और हम लोग को तरफ था कि ये लड़की बाहर जाकर के नहीं पढ़ सकती है, तो गांव में जितना ही सुविधा है उतना ही तक पढ़ना है. तो 10th तक था सुविधा, तो 10th तक पढ़ी और पढ़ाई भी करती थी. फिर बाकी टाइम माँ के साथ बैठ करके इंटरेस्ट रहता था, माँ को देखती थी तो माँ के साथ बैठ करके. माँ भी चाहती थी कि मेरा कला अपने बच्चे को सिखाए, बच्चे आगे बढ़े. तो फिर माँ के साथ अपना बैठ करके इधर उधर टाइम पास नहीं करती थी, माँ के साथ बैठ करके अपने काम करती थी, सीखती थी. माँ से पूछते थे कि माँ ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसमें कहाँ कलर आएगा, कहाँ कचनी आएगा. तो माँ बताती थी, फिर मैं करती थी. कहाँ पे थे आप उस समय हेमा जी? किस गाँव जगह में. पे? हाँ, कौन से? रशीदपुर गांव है. अच्छा. माँ का घर है रशीदपुर और ससुराल है वहां से 20 किलोमीटर दूरी है. सलेमपुर कहा जाता है उसको. सब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है. जी, सब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो हिमा जी, मैं क्या करूंगा, बीच बीच में मैं लोगों के लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा. तो Hema ji started learning the art of Madhubani when she was around 15 years old, and of course she was in a village called Rashidpur that time, and a lot of it is actually informal learning along with their respective mothers, and obviously there were not avenues for a lot of higher education, so she studied till 10th, and then of course she started learning by practicing. So हेमा जी, उस समय जब आप अपने माँ के साथ सीखती तो काफी डांट भी पड़ती थी कि ये गलत किया, वो सही किया है. जी, जहाँ गलत करती थी वहाँ तो माँ डांटती थी. हाँ, लेकिन तो क्या क्या गलतियां होती थी आपसे? वो डांट खा करके सर अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ. वो सब तो सच है.
सभी की कहानी वैसी है, माँ बाप से डांट खा के ही सीखते हैं। लेकिन किस बारे में डांट पड़ती थी, क्या क्या गलतियां होती पड़ती थी कि टेढ़ा बना देती थी, कभी टेढ़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी कलर, जहाँ कलर देना रहता है वहाँ कलर नहीं, जहाँ कचनी का डिजाइन देना रहता था वहाँ का डिजाइन नहीं। तो उसमें माँ थोड़ा डांटती थी, गुस्सा थी? करती थी, लेकिन वही गुस्सा आज हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, जैसे कि आप और अभी आप लोगों को पढ़ाती हैं कि कहाँ पे कचनी, कहाँ पे कलर्स होना चाहिए, तो इसके कुछ ऑब्वियसली मधुबनी का ऐसा कोई कोर्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिथिला इंस्टीट्यूट वगैरह के करते हैं हम लोग। लेकिन ये सब जो काफी जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, जैसे जी कि जी आपकी माँ ने आपको सिखाया। जी। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या फिर जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, ये मधुबनी में क्या होते हैं? क्योंकि मधुबनी तो फ्री फ्लोइंग आर्ट है, उसमें उतना प्रपोर्शन नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ एक जो कॉमन चीजें जो लोग और आर्टिस्ट यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं ये कॉमन चीजें कि ऐसा करना चाहिए? ये तो अपने मन से है ना, जो कहाँ कौन डिजाइन डालना है। हम्म। लेकिन मैंने ये सोच करके जो कहाँ डिजाइन, कौन सा डिजाइन डालना है, कहाँ डालेंगे जो अच्छा लगेगा, पेंटिंग अच्छा अगले को दिखने में अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगे, ये सोच हम्म। करके। ऐसे रूल नहीं है कि ये डिजाइन यहाँ डालना ही है, ये कलर यहाँ डालना ही है। अपना अच्छा। सोच करके कि अपना सोच करके कि कहाँ कौन कलर डालेंगे, कहाँ कौन डिजाइन डालेंगे जो अच्छा लगेगा। अच्छा। तो इसमें आप जैसे रशीदपुर गांव से थे और ये आजकल लोगों को जितवारपुर के बारे में भी पता लगना शुरू हुआ है। तो और आपके जो चाची थे, जो आपकी जो दादी थी, वो भी इन सब में काम करती थे, तो उनके साथ आपका कैसा बातचीत होता था, कैसे इंटरेक्शन होता था? आप उनसे भी सीखते थे? अच्छा बातचीत होता था, क्योंकि चाची जो थी ना पद्मश्री गंगा देवी, तो वो हम्म। तो घर अलग अलग था, मेरी माँ का घर अलग और चाची का घर अलग। लेकिन जब चाची थी मेरे माँ के यहाँ, तो देखती थी जो हम सीख रहे हैं, तो वो और खुश होती थी कि चलो भाई तुम भी सीख लो, और माँ तो सीखी है, हम सीखे हैं, तुम भी सीखो, अच्छा से सीखो, अच्छा से बनाओ, हम लोग कैसे आगे बढ़े हैं, तुम भी आगे बढ़ो। ऐसे करके चाची बताती थी। तो और खुशी लगता था कि देखिए चाची की पद्मश्री बन गई, पद्मश्री ले ली, और हम लोग को भी उन्हें सहारा दे रही है, हौसला दे रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम ऐसे सीखो, ऐसे करो, तुम आगे बढ़ोगी जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो खुशी होता था अंदर कि चाची से बात हो रहा है। आप कब पद्मश्री के लिए अप्लाई कर रही हैं हेमा जी? क्या? आप कब पद्मश्री के लिए अप्लाई कर रही हैं? पद्मश्री का अभी तो इस बार निकला हुआ है, अभी भी डेट है। मैं फिर? नहीं अप्लाई की हूँ, नहीं की हूँ अप्लाई। अच्छा। अभी और आपको तो थोड़ा सोच लेती हूँ कि आगे बढ़ने में कुछ और काम कर लेती हूँ, तब पद्मश्री के लिए थोड़ा ये जितना प्रोसेस काम। कैसे चलता है? तो ये हेमा जी, ये प्रोसेस कैसे चलता है? मतलब आर्टिस्ट को खुद पद्मश्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि कुछ सपोर्ट सिस्टम रहता है? ये कैसे होता है? वो अप्लाई करना, जैसे डेट निकला है ना 10 सितंबर तक, आज कल तक डेट था, तो वो डेट रहता है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। और अपने स्टेट से जैसे डीएम सबसे, बड़ा बड़ा अधिकारी सबसे संशोधन कराना पड़ता है। अप्लाई तो जमा कर, आज अभी तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस हो रहा है, तो ऑनलाइन ही हुआ है इस बार भी। तो जब आपकी जो चाची, जब गंगा देवी जिनको पद्मश्री मिला था, तो काफी लोगों को ये शायद अंदाजा नहीं है कि पद्मश्री के बाद आर्टिस्ट की लाइफ बदलती है। जी जी। क्या बदलता है, क्या होता है? ज्यादा रिकॉग्निशन तो मिलता है, ऑब्वियसली सरकार ने अवार्ड दिया और अच्छा लगा, लेकिन इससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है? पद्मश्री है सो मधुबनी पेंटिंग में तो अभी तक सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, बहुत बड़ा माना जाता है। इससे बड़ा भी अवार्ड है, लेकिन अभी तक तो मधुबनी पेंटिंग में जिनको मिला है ये यहाँ तक आई है। और उनका
और बहुत अच्छा रहता है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो रिस्पांस बहुत ज्यादा मिलता है कि पद्मश्री आर्टिस्ट है, ये पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ है। उनसे बहुत इनको सपोर्ट मिलता है, हर क्या विभाग से, हर जगह, हर ऑफिस में उनको रिस्पांस बहुत ज्यादा मिलता है। सबसे पहले मिलता है उनको। अगर कोई जनरल आर्टिस्ट पहुंच जाए या नेशनल अवार्ड पहुंच जाए या पद्मश्री में पहुंच जाए तो पहले उनको पद्मश्री को इतना रिस्पांस मिलता है, उसके बाद नेशनल अवार्ड को मिलता है। पहले काम भी पहले पद्मश्री को मिलता है, कोई भी काम पहले पद्मश्री को मिलता है। जैसे अभी हम नेशनल अवार्डी हैं तो पटना में है, पटना से है, लेकिन पटना में अभी हम सिंगल नेशनल अवार्डी हैं। तो कोई भी हम लोग को जो विभाग है तो कोई भी काम आएगा तो पहले हमसे पूछा जाएगा कि आप ये काम करिएगा कि नहीं, स्टॉल आप लगाइएगा कि नहीं, ये आपको दिया जाएगा, आप काम करिए कि नहीं। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है या हमसे नहीं होगा, तब स्टेट अवार्ड को खोजा जाएगा, पहले नहीं खोजा जाएगा, पहले हमको रिस्पॉन्स देगा यहाँ। तो आप सिर्फ एक सिंगल नेशनल अवार्डी हैं पटना में? अभी सिंगल नेशनल अवार्डी है पटना में। वाओ हेमा जी। हर स्टेट में इसका ऑफिस है ना भारत सरकार का। हम्म। तो मधुबनी से तो बहुत है, लेकिन पटना में बहुत। अभी सिंगल है अभी पटना में। चलिए। बहुत बढ़िया. So just for everyone, obviously the life of an artist does change when they get these recognitions, including the national award, the state award, and Padam Shri, of course. Having said that, of course, I mean, while they get the first invitation to or the invite to do certain amount kind of work, we will also explore what is the in general happens when they try to progress the art further. So हेमा जी, जैसे आप ऑब्वियसली आपको इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं. कल हमने सबसे पूछा कि हेमा जी को कितने अवार्ड मिले हुए हैं, तो काफी लोग ने आंसर किया, काफी लोग को पता था आपके बारे में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है. आपको नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है, सीता देवी अवार्ड मिला है, अभी भाषा के लिए मिल रहा है. लेकिन एक अवार्ड तो एक चीज हो गई, इससे आपको जैसे कि आप जाके कितनी जगह स्टॉल लगाते हैं और पिछले 2 साल में ऑब्वियसली कोविड के कारण उतना रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो प्रोसेस कैसे चलता है स्टॉल में, या फिर आप अपने पेंटिंग्स को जो बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे होता है? जी, जो सेल करते हैं तो वो सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। जो स्टॉल मिलता है, तो जैसे हम नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं, जो उनको फ्री में देता है। अच्छा. जैसे साल में 2-3 स्टॉल साल में दे देता है सरकार। और सरकार ई कॉमर्स खोला है, उससे ऑनलाइन भी सेल हो रहा है। अच्छा. दिल्ली हाट में है, सूरजकुंड में है, जहाँ बहुत जगह सरकार अपना स्टॉल लगाता है। जैसे एक हुनर हाट करके आता है, तो हुनर हाट करके वो सब जगह लगाता है, बहुत जगह वो सरकार लगाता है हुनर हाट करके। उस समय जो स्टॉल देता है ना, तो आर्टिस्ट के नाम पर, नेशनल अवार्डी या स्टेट अवार्डी के नाम पर फ्री में देता है स्टॉल, कोई चार्ज नहीं है उसका। आने जाने का पहले तो देता था, आने जाने का किराया भी देता था, अभी भी दे रहा है। जैसे 15 दिन का है तो 15 दिन का आपका जोड़ का खाना देगा, रहने का देगा, आने जाने का भाड़ा देगा, वो जोड़ करके दे देता है। टीए होता है और स्टॉल फ्री दिया। सरकार की तरफ से इतना सपोर्ट मिलता है हम लोग को। अच्छा, तो जब आप ये स्टॉल लगाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल लोग और जो आसपास के जो हैं वो आके आपसे लेते हैं. इन जनरल लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है वहाँ पर? लोगों को मधुबनी आर्ट को इतना अप्रिशिएशन है कि ये नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट से की पेंटिंग खरीद रहे हैं, ये उनको समझ में आता है वहाँ पर? वहाँ पर स्टॉल जहाँ पर लगता है ना, स्टॉल में एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जो किनके नाम से स्टॉल है, ये क्या है, नेशनल अवार्डी है या ये स्टेट अवार्डी है या जनरल कलाकार है। तो वो बोर्ड को देख करके कस्टमर लोग आते हैं, देखते हैं
जो चलो ये नेशनल अवार्डी का है। जब स्टॉल में वो आकर के बैठते हैं तब देखते हैं, तब बोलते हैं हम लोग सब तरह का पेंटिंग दिखाते हैं, दुपट्टे पर, साड़ी पे, सब। तब वो देखता है तो वो बोलते हैं कि नहीं। और नेशनल अवार्ड जैसे मेरा पेंटिंग रहता है, तो मेरा पेंटिंग में अंदर में सिग्नेचर रहता है। तो और जनरल आदमी नहीं लिख सकते हैं, कोई जनरल का आर्टिस्ट जो है वो अपना नाम नहीं लिख सकते अंदर में, पेंटिंग के अंदर। और नेशनल, और जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो नाम के आगे हम नेशनल अवार्डी लिखते हैं, तो वो देख लेता है, पहचान जाता है जो नेशनल अवार्डी के पेंटिंग है। हाँ, तो ये चीज मैं बताना चाहता था लोगों को कि जब आपको हेमा जी से फाइनल पेंटिंग मिलती है और उसके आगे NA लिखा होता है, कभी आपने सोचा वो NA का मतलब क्या है? वो NA का मतलब नेशनल अवार्डी है। सो एवरीवन, व्हेन यू गेट द फाइनल पेंटिंग फ्रॉम हेमा जी एंड यू एक्चुअली सी एन NA एट द बॉटम, NA actually means it's a national award. It's done by the national awardee. And we, as Hemadi was saying, that they obviously try to sell their artwork to these different fairs which are organized by the government, and they do get some privileges as a part of it and support. We are also trying to help Hema ji. So Hema ji, हम आपकी थोड़ा पेंटिंग भी देखना चाहेंगे जो आपके पास है। उससे पहले मैं थोड़ा लोगों को ये दिखाना चाहता था कि हम हेमा जी की पेंटिंग हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के पास पहुंचे। और अगर किसी को ये पता नहीं है कि हेमा जी की पेंटिंग कैटरफ्लाई के वेबसाइट में है, और इसके अलावा भी काफ़ी जो अभी हेमा जी थोड़ा शेयर करेंगी, आप लोग अगर हेमा जी की पेंटिंग खरीदना चाहें तो ये खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ कैटरफ्लाई को बताना है, यू कैन जस्ट लेट अस नो, देयर इज लॉट ऑफ दिस, देयर इज लॉट ऑफ डिटेल्स अराउंड दिस, यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज paintings, you can actually see the detailed work here, right? I mean, this is can see, I mean, Kachni is one of our favorite designs in general anyways, right? And you will see a good variety of the work that you have here that you can actually go through. And if you would like to maybe do a custom made piece of any particular design that you personally prefer, or you have certain ideas, let us know. All that is possible. Yeah, and this is obviously our intent that a maximum return that can be generated for artists like Hema ji. We obviously try our best. So Catterfly के website में तो ये है. In fact, I would request Megakchi and our team to share all this with each one of you, so that in case you would like, you can. And Hema ji, आपके पास तो इतनी पेंटिंग होगी घर में कि शायद रखने की जगह नहीं रहती है, तो कहाँ रखती हैं आप पेंटिंग, और थोड़ा दिखाएंगे हमको? अच्छा, थोड़ा दिखाइए। हमने कल, आपने जो आपके 2 दिन पहले जो तीज का जो था ना, आपने इतना बढ़िया से मनाया था, उसका एक वीडियो बनाया था, देखा था आपने? जी नहीं देखा। देखिए मेरा हाथ का पेंटिंग है, मेरा बना हुआ। अच्छा, यहाँ नीचे में मेरा सिग्नेचर है। तो आप मोस्टली कचनी में काम करती हैं? आप सिखाती सब कुछ हैं, लेकिन कचनी में आप ज्यादा करती हैं? जी जी ज्यादा। अच्छा, Same paint which is there on the website. it is the same one, right? Beautiful. तो इसमें आपको कितना समय लगता है हेमा जी? एक आप जब खुद अपने स्पीड से बनाते हैं, सिखाते नहीं हैं, तो ये अपने हम खुद से बैठ करके अगर बनाते हैं तो 3 दिन लगता है ये पेंटिंग बनाने में। 4-5 घंटा, 5 घंटा कम से कम बैठते हैं। टोटल फाइनल करने में 3 दिन। और सब पेंटिंग को आप ये फ्रेम करके रख देते हैं? कुछ फ्रेम करके रखते हैं, कुछ ऐसे फ्रेम का विदाउट फ्रेम रखते हैं। अच्छा, और अगर लोग खरीदना चाहें बिना फ्रेम के, तो आप वो रोल करके भेज सकते हैं वहां से? हाँ हाँ, रोल करके भेज सकते हैं। ये साइज में तो फॉन्ट लगा कर भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो पेपर रहता है 3 तरह का बनाते हैं। एक खूब बहुत पतला रोल खरीदते हैं, उसमें से काट के बनाते हैं, और दूसरा मोटा वाला रोल रहता है, उसको बनाते हैं। अच्छा, और एक नॉर्मल रहता है जिसका पीस बना हुआ मिलता है, तो वो बनाते हैं। तो ये सब जो है ना, जैसे छोटा छोटा जितना पेंटिंग है, एकदम पतला 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 जो रोल खरीदते हैं ना, उस पर बनाते
तो वो हम रोल करके नहीं भेज सकते, उसमें हम फॉन्ट बना करके भेजेंगे। ओके, तो जो पतला पेपर में उसमें ऑब्वियसली रोल में वो खराब हो सकता है, इसीलिए आप ये पूरा वो करके दो। फट जाता है, पतला रहता है ना। और जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको हम रोल करके भेजेंगे। ये नॉर्मल जो पीस मिलता है ना, वो पीस गोदना पेंटिंग, ये गोदना। ये फाइल है। हाँ, we wanted to all of you to see this is a beautiful piece of art. Hema ji does this a lot. जो file है, where you put all the papers and all. The Madhubani painting on the cover of that file. It's a beautiful piece to keep or gift. लैपटॉप का बैग है। लैपटॉप का बैग, वाओ, बहुत सुंदर। तो इस पे भी एक्रेलिक पेंट ना हेमा जी? जी। और उसके ऊपर कुछ किसी चीज का कोट डालते हैं या सिर्फ पेंट बस और करके? सिर्फ पेंट रहता है। ओके। वाह, ये तो बहुत अद्भुत है। दिस वेरी वेरी नाइस हेमा जी। तो आप और दिखा रहे हैं। ओह, ये दुपट्टा है। वाह, ये सिल्क का है। ये खादी कॉटन है। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर दशहरा दिवाली ना। तो दशहरा दिवाली की लोग खरीदते हैं हेमा जी? जी खरीदते हैं। इसका कोई दिवाली या छठ का ऐसा नहीं है, ये हर समय सेल होते रहता है। जैसे दुपट्टा सब ना हर समय होता है, इसका तो यूज का है, ये तो कभी भी आदमी यूज के लिए खरीद लेता है। और ये धोने के बाद इसका कलर बिल्कुल सही रहता है? हाँ सही रहता है। ये कपड़ा पुराना हो जाएगा लेकिन कलर ऐसे ही कैसे ही रहेगा, इसका कलर नहीं जाता है। अच्छा। और ये दुपट्टा बनाने में आपको कितना, आप खुद अकेले बैठ के बनाते हैं कि आपके साथ जो और कलाकार हैं वो भी करते हैं? ज्यादा हम कलाकार से बनवाते हैं दुपट्टा सब। अपने जब जरूरी रहता है, ऑर्डर का रहता है, नहीं आप ही का काम चाहिए, तो उसमें हमको काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा। तो हेमा जी, आपने जैसे इंडिया के बाहर जाके भी अपना एग्जीबिशन किया है, काम किया है, आप कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किए हैं और क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? लोगों को बाहर के लोगों को कैसा समझ में आता है मधुबनी, थोड़ा बताइए उसके बारे में। मधुबनी पेंटिंग तो ऐसा है कि बाहर अपना देश नहीं विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार है। तो विदेशों को लोग को बहुत मालूम है कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, कहाँ का है ये कला। तो इंडिया के बाहर तो मैं एक ही जगह गई हूँ अभी तक, एम्स्टर्डम। तो वहाँ का लोग को बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुआ। हमको क्या कला को क्या देखेगा, हमको देख करके बहुत पसंद आया, खुश हुआ। देखिए आप लोग इंडिया से, वहां से आप मधुबनी से आ गई हैं, कितना अच्छा है। वहां बैठ करके हम बनाए, थोड़ा डिमोन्स्ट्रेशन दिए, तो वो देख करके तो इतना वो लोग खुश हुआ, जो हाथ से ये लोग कितना अच्छा बना लेते हैं। और आप तो इंक से बनाती हैं, वो पेन से बनाती हैं, वो देख के तो और भी ज्यादा आश्चर्य में होगा। हाँ, बहुत खुश हुआ सब, और सेल भी हुआ, अच्छा सेल हुआ देख कर। इधर के लोगों को बहुत पसंद है इंडियन आर्ट, और मधुबनी तो इतना कलरफुल है ना, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत पसंद हुआ, इतना खुश हुआ देख करके, बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ मिला हमको। कोरोना हटते ही आप स्विट्जरलैंड आइएगा, यहाँ पे भी बहुत लोग को बहुत पसंद आएगा। जरूर। So we should open the floor for everyone to ask questions, Nathan. So I mean, at any point in time, I mean, this is obviously, we know obviously a lot, but I would really like to invite every one of you, anyone who wants to ask any question or suggest any ideas, and please feel free to. I have a question to everyone. What I wanted to know from everyone who is here, that what do you want to learn from Hema ji?
You can give us the feedback directly. You can ask her also if he can. She can, obviously she will teach everything because she has so much of craft in her. But anything specific which you want to learn, please unmute yourself and ask, or any question you may have. हेमा जी नमस्कार, मैं अर्पिता बोल रही हूँ दुबई से। नमस्कार। मैंने आपकी कई वर्कशॉप्स करी हैं एंड इट इज सो नाइस टू सी योर वर्क। और मैं कोशिश करती हूँ आपका काम, स्पेशली जो वर्कशॉप वाला है, हालांकि मैं बहुत स्लो करती हूँ, थोड़ा मुझे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं आपका सब काम करूँ, कुछ वैसा ही, कुछ अपना चेंजेस के संग। और मैं आपसे तंत्रा पेंटिंग सीखना चाहूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से सिखाती हैं एंड आई लव योर वर्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। Thank you, Arpita. I think I think you joined a bit late, and that's what we were discussing, that Tantric is one of those very rare form of the Madhubani painting that obviously not many people practice or teach. We did a workshop on Tantric actually some time ago, and we will try to repeat that for sure. Okay. Can one purchase recordings if because I have missed that? Sure. I think that should be possible. So we will definitely. I'll get in touch with Rekakshi then. Thank you. Rupal, yes. नमस्ते हेमा जी, मैंने भी अपना चेहरा भी दिखा दो रूपल। I will sure one sec. तो हेमा जी को भी देखना चाहिए ना कौन उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। One sec. हाँ हेमा जी, अब देखिए कौन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उनको भी लाएंगे स्क्रीन पे। नमस्ते हेमा जी, आप तो इतने खूबसूरत हो, दिल के भी और दिखने में भी, और वो ही आपके आर्ट में आता है। शी इज सच अ हम्बल पर्सन। आई रियली लव द वे शी टीचेस एंड एनकरेजेस अस। तो आई वांट टू लर्न सम मोर गुड कलरफुल पेंटिंग्स हेमा जी आपके। कचनी में और भरनी में सीखे हैं हमने, और ब्यूटीफुल वो हाथी, पिकॉक एंड फिश वाले डिजाइन्स वो सब किए हुए हैं। बट थोड़ा कुछ कलरफुल में और हो तो थोड़ा और मजा आ जाए। अभी जैसे आपने वो फाइल या फोल्डर दिखाया तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, तो ऐसे कुछ वर्कशॉप्स हो तो आई वुड रियली लव इट, and preferably I think if we can do in the evenings, because since I'm working, but still it's okay, I will adjust my timings if I know in advance. तो भरनी में बहुत लोगों को करना है हेमा जी, उनका बहुत लोगों अलग से भी ये बोल रहे थे कि भरनी में भी कुछ और अभी आना चाहिए, तो हम लोग वो भी प्लान करेंगे। हाँ हेमा जी देखिए रूपल जी का बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर बना है। हाँ आपने ही तो सिखाया है, सुंदर अच्छे टीचर हो तभी बन पाता है, नहीं तो नहीं बनता। I'm so happy to be a student. मैं तो कहीं भी सिखाती हूँ तो ऐसे ही सिखाती हूँ। हाँ वो तो है, सही है एकदम। सफाई हाथ नहीं मारती हूँ, क्योंकि सिखाने के लिए सही हूँ या सिखा रही हूँ, अभी भी सिखा रही हूँ। तो क्या आप सीख रहे हैं, अपना टाइम निकाल करके मेरे पास आकर के बैठ करके सीख रही हैं, तो अपना तो सबके पास, किसी के पास टाइम नहीं है जो फालतू का टाइम बैठ करके बर्बाद करेगा। करेक्ट। आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, तो अच्छा से सिखाऊंगी ताकि आप सीखिए और सोचिए कि कहाँ सीखे हैं, कौन सिखाए हैं। करेक्ट। नहीं आप बहुत अच्छा एनकरेज करते हैं सबको, और वो बात तो बहुत अच्छी लगती है कि आप देखिए पेंटिंग को, कुछ और अंदर डालिए, आपको पसंद आना चाहिए तो दूसरों को पसंद आएगा। हाँ, और पेंटिंग में इतना है कि जब भी हम देखते हैं तो हमेशा लगता है कहीं और कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है, तो उसकी वजह से जो आपकी बात है एकदम दिमाग में बैठ गई है कि जब तक अपने को लास्ट नहीं करेगा, सामने से नहीं हटाइएगा, तब तक नहीं इसमें और कुछ कर देंगे। आपको भी ऐसा लगता है हेमा जी अपनी पेंटिंग में कि कुछ और कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं?
लगता है जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हाँ। नजर पेंटिंग पर रहता है कि नहीं इसमें और कुछ कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। परफेक्ट, मुझे भी ऐसा ही होता है हेमा जी, नींद नहीं आती जब तक फिनिश नहीं हो, और हर पेंटिंग के 10-15 दिन बाद तो फाइनली वी हैव टू थिंक इट्स अ क्लोजर नाउ, अदरवाइज इट विल नेवर गेट ओवर। It's so beautiful, but I'm really thankful to the entire Catterfly team because you all have given us beautiful artists and beautiful innovation, lovely things to learn, and that too at such a far distance we are able to coordinate with everyone, which is really beautiful. So God bless your entire team and our beautiful artists. Thank you, Rupal. Thanks a lot. Yeah, thank you. Thanks a lot. और किसी को Thank you, क्वेश्चन? Hema ji. रमा जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेमा जी नमस्ते, मैं सोनाली गुप्ता राजस्थान से। सोनाली जी अपने आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ ये देखिए सोनाली बहुत दिनों बाद दिखी। हेमा जी, हेमा जी आज आप इतने सुंदर लग रहे हो और आपको नमस्ते। और हेमा जी और ज्यादा सुंदर इसलिए लग रही है सोनाली कि एक दिन पहले तीज था और तीज इज लाइक शी वाज लाइक अ दुल्हन दुल्हन लग रही थी। हेमा जी आपने ये जो रासलीला बनवाई और ये जो मोर बनवाए, रासलीला के लिए भी मेरे कजन भाई बहनों में सब में लड़ाई हो रही है। मैंने बोला मैं अब नई तरह की रासलीला सीख के ना दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि एक ही मैं कितने लोगों के लिए बनाऊंगी। तो वो जो रासलीला है कृष्ण जी की जो अभी दिखाई थी, वो उसी का कोई वेरिएशन और बनाना है। We can take that as a one point. रासलीला ऑब्वियसली हम लोगों ने बस एक ही डिजाइन किया है अभी। रासलीला तो इतने सुंदर डिफरेंट तरीके से सिखाई जा सकती है ना हेमा जी, वो तो हम लोग तरह से रासलीला है। आप बिलीव नहीं करेंगे हेमा जी, मैंने मतलब 2-3 लोगों में तो फेसबुक पे मेरे उनमें झगड़ा हो गया, दोस्तों में और बहनों में। क्या हेमा जी एक मिनट झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है किसी को। ये वाला मेरी सिस्टर ने बोल दिया कि ये मुझे चाहिए, फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे भी चाहिए, यही चीज चाहिए। ओह सोनाली यू आर इन सो मच ऑफ डिमांड राइट नाउ। नो आई सेड कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, अब मैं हेमा जी से दूसरा सीख के दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि पहले वाली मेरे को डांटने लगी कि आप कैसे प्रॉमिस कर रहे हो दूसरे को फ्रेंड को देने को, मैं बहन हूँ मुझे पहले दोगे। चलो वंडरफुल सोनाली। इसी का कुछ और दोबारा बिल्कुल वी हैव टेकन दैट पॉइंट कि रासलीला ऑब्वियसली रासलीला इतने तरीके से बन सकता है, वी विल डू इट फॉर श्योर। वो जो कचनी में लेडी सिखाई थी हेमा जी, वो भी बहुत ज्यादा पसंद है सबको, उस टाइप का भी कुछ करिए। कचनी में जो एक लेडी बनाया था ना, हाँ वही वो वंडरफुल बैठा हुआ, मैं अभी दिखाती हूँ उसका भी बहुत ज्यादा वो सब कर रहे हैं कि हाँ याद है हमें वो लेडी वाला ना सोनाली, वो याद है हमें व्हाट यू आर सेइंग। आप बिलीव करेंगे मैंने संजय सर से भी सीखा और सब, वो मैं बना ही नहीं पा रही क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि बस मधुबनी बनाओ तुम सीख के। सही है। तो बहुत धन्यवाद हेमा जी, आपने लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत सीखना है आपसे। थैंक यू सो मच। वेलकम। Anyone else? Rama, you wanted to ask something? Or anyone else who wants to ask, please feel free. I see a lot of familiar names here, and I would really, I'm very keen to ask so many questions. I'm holding myself back. Meanwhile, anyone else who would like to go ahead? While we're waiting, one thing that I wanted to ask हेमा जी कि आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं, कई बार बहुत अच्छा चलता है, कई बार उतना अच्छा नहीं चलता है। तो कई बार आपको ऐसा लगा कि हम इतना काम करते हैं लेकिन उतना जितना हमें रिटर्न मिलना चाहिए या जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बेसिकली जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट होते हैं, तो आपके एज एन आर्टिस्ट जो आपकी लाइफ में कब आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा मजा नहीं आया? कुछ ऐसा हुआ कभी? अभी तक ऐसा नहीं लगा है।
अब आगे क्या होगा वो तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब से मैं मार्केट में आई हूँ, जब से कला सीख करके यहाँ तक खड़ी हूँ, तब तक तो अभी तक नहीं लगा है जो ऐसा नहीं हुआ। तब तक कुछ न कुछ आते रहा, अच्छा लगा, आगे बढ़ते रही और सोच रही हूँ कि आगे बढ़ूं और कुछ करूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अगर आगे बढ़ने के लिए आप अपनी तरफ से इतनी कोशिश करती हैं और हम लोग ऑब्वियसली इतनी बात करते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि ये 2-3 चीजें और हो जाएं तो हमें आगे बढ़ने में और सहायता मिलेगी, तो वो 2-3 चीजें क्या होंगी? अगर आपकी हम बोलें कि विश लिस्ट या महत्वाकांक्षा, वो क्या होगा? ये 2-3 चीजें हो जाएं तो हमें थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा मदद मिलेगी। ऐसा कुछ है आपके दिमाग में कि ऐसा लगे कि हमें चाहिए कि लोग ऐसे? जैसे आगे सब बढ़ता है, सब आर्टिस्ट लोग, वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूं। तो उसके लिए तो जैसे स्टेट अवार्ड मिला तो वो सहारा दिया नेशनल अवार्ड के लिए। अब पद्म श्री के लिए सोच रही हूँ, तो पद्म श्री के लिए तो नेशनल अवार्ड सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए तो कुछ न कुछ सपोर्ट करने के लिए मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो जब मैं स्टेट अवार्ड जीत ली तभी हमको आ गया कि नहीं, आगे ही सहारा देगा, नेशनल के लिए सहारा देगा। जब नेशनल हो गया है तो अब अपना मन में होता है कि नहीं, जब पद्म श्री के लिए अप्लाई करूंगी तब जरूर ही सहारा देगा। तो हेमा, सॉरी, हाँ हेमा जी प्लीज बोलिए। और ऑफिस का सपोर्ट मिलते रहता है तो और लगता है कि नहीं, जरूर कुछ आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और खुद का वेबसाइट एक ठो है जो आगे वो सपोर्ट करता है अभी तो बनाना। यही, हाँ, तो वही हम एक लोगों से शेयर करना चाह रहे थे हेमा जी कि कैटरफ्लाई और हेमा जी साथ में मिलके इनको जो इनका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो पेंटिंग्स हैं, उसमें हम लोग साथ काम करने की सोच रहे हैं, और जिससे कि आप लोग डायरेक्टली हेमा जी से भी जुड़ सकें और हम लोग मदद करेंगे हेमा जी की जितनी अपनी तरफ से हो सकता है, और आप लोग का सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। Also, one thing that we are also trying is, can we actually have a Madhubani art residency kind of a program where you can learn for maybe 1 full day or 2 or 3 days. So we are trying to set it up. Say, like, of course, the best thing to do is if you could visit, say, Patna in Bihar, and we obviously will take you around to other places besides, of course, learning with Hema ji face to face. We are also trying to start off with, say, like, maybe with a pilot in, say, maybe Delhi, and Hema ji is actually willing to come to Delhi to teach. So any suggestions, any ideas, any what do you all think? Is that something that you would like to? Yes, Nitinji, I would love to, because I had asked Manjula ji also to organize a trip after Corona. But if instead of going to Bihar, if she can come to Delhi and we can come to Delhi, then that is a very central place and it will be very good. It is just that because in a central place we have relatives also where we can, even if you are not providing accommodation, then we can live on our own and attend the whole day sessions. So that would be a good idea. Thank you, Sonali. So हेमा जी, जैसे आपसे बात कर रहे थे ना कि अगर हम लोग फेस टू फेस वर्कशॉप भी करें, डिजिटल तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन जैसे फिजिकल वर्कशॉप का हम सोच रहे थे ना कि या तो पटना में या फिर दिल्ली में, तो उसी के बारे में लोगों से पूछ रहे थे कि कैसा उनका विचार है। तो सोनाली जी तो काफी एक्साइटेड हैं, और कोई anyone who thinks that this is something that they would really like to? Of course, we will share a proper plan and a proper date around it. Yeah, sir, I'm here. Kajal here. Yes, Kajal. If Hema ma'am can come to Bangalore also would be fine. I'll be really glad to meet her and learn from her. Sure. That
Absolutely, is possible. We are basically just trying to see that. Of course, we are expecting the COVID to settle down a bit, and of course, at the same time, see that what's the easiest place to start, and then of course, Bangalore is something that we'll obviously consider. We'll share obviously the details and see that what's possible dates, because you obviously need some minimum number of people to join, right? So thank you so much, Kazal. We will certainly try for that. Nitinji, can I speak? Yes, please. Yeah, Nitinji, I also have a suggestion. This is a little vague one, but I'm sure it's a nice one. As you had dealt with, earlier technology and art. So this was something which comes to my mind. Maybe Catterfly is at a little early stage, but nevertheless, I think it is possible with you and your team. Hemaji's paintings and all the other artists' paintings, if we can have some show, a digital show wherein, with music, the paintings are displayed in digital patterns. And I just saw a similar show in Phoenix in USA. I had shared the link with Mrigakshi ji, yeah. And it just came to my mind, if something like this can happen here, people would love to come and attend the show. Not that everyone are capable of drawing or would want to draw, but in India, people are looking for some different kind of educative entertainment, something which is good context and core. And what better than this art and such beautiful artists what we have. So if you can just, at some point check that link also, because on the big screens, they are showing all these paintings of, that was of Van Gogh, of course, but we have nothing less over here, such beautiful artists. You're Yeah. absolutely right, Rupal. Yeah, and you will not believe, मेरे को उस वक्त हेमा जी एक छोटा हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ. एक यूएसए में शो हुआ था, जो मेरा बेटा उधर है, वो गया था एक आर्ट शो के लिए. वैन गोग आपके जो एम्स्टरडैम आप गए थे, वो वहां के पेंटर है, और उनकी पेंटिंग्स उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर दिखाई म्यूजिक के साथ, पूरे जैसे वो अपने ऑडिटोरियम रहते हैं ना इसमें, और ऑडिटोरियम भी नहीं बोल सकते, पूरी खुली जगह थी और सब घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं वैसा, और म्यूजिक के साथ वो अंधेरे में लाइट्स पड़ती है और एक पेंटिंग की छवि आती है, फिर दूसरी जाती है, और फिर वो बीच में आपकी पेंटिंग, आप खुद आपका पिक्चर आता है कि ये आपकी पेंटिंग है, और इतना बढ़िया था. तो मेरे सामने सब आपकी मधुबनी की पेंटिंग्स आ रही थी और नितिन जी और मृगाक्षी जी आ रहे थे. Yeah, and I was really, really dreaming of this, Nitinji, and I think this dream has to come true. It will, I can go out of my way with to extend the help, whatever you can. It has to happen in Mumbai, I think. I will And tell we you a should few do things. something like this, and I have a lot of good contacts, my engineering friends, my medical friends who would love something like this. All of them are not capable of drawing, and people love to see good art. And I think this would be a very beautiful way to depict it, just, rather than being in the frames or things like that. So this is something big which we have to think, and I think it's doable. So I It think, is Nitinji, absolutely you are possible. quite dynamic and focused. So maybe not now, down the line, we should plan something like this. I'll share a few things with everyone, because many of you obviously know Catterfly very well. Some of you may not. Yeah. Catterfly. So हेमा जी, ऐसा शो करना है हमको, और आपको और नितिन जी और मृगाक्षी को स्टेज पे आना है, बस ऐसा कुछ करना है. हम स्टेज पे आए ना है वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं आना ही है. Why not? You are हेमा जी so hard. आएंगी, I'm going to drive पक्का. you all. Yeah, 100%. No. If we So dream, then it's doable. No, so we must dream. It's like that. Thank you. fact, yes, absolutely. In fact, we actually did conduct a session on Van Gogh and the traveling exhibition. So actually, we did it some time ago, and Rupal, I'll share that with you also. I'm very familiar with that traveling exhibition of Van Gogh. Okay. And I think this audio-visual show of the traditional Indian art is something that we're already planning. Many of you may not know that we actually did a lot of culture fest also. We actually did a culture fest on Mithila, where we actually had obviously a live painting along with the jizya dance, which is traditional to Madhubani. Yeah. We actually had tribal dancers from Nepal who did a live show of the jizya dance along with the Madhubani painting. We actually also taught the traditional Bihari cuisine as a part of it. Yeah.
Many of you may be familiar with Litti Chokha. हेलो Yes. नमस्ते, मैं हेमा जी का वो जो रास मधुबनी बनाए थे ना श्री कृष्ण का, वो किया था। हाँ जी शर्मिला जी, दिखाना चाहेंगे आप अपना वीडियो और पेंटिंग? दिखाऊंगी, वो तो भेजी थी मैं वो आपके कैटरफ्लाई वर्कशॉप में। कैसा लगा आपको शर्मिला जी हेमा जी से सीख बहुत के? अच्छा लगा। मैं और थोड़ा सीखना चाहती हूँ, मगर कैसे वैसे वाला वो मैंने थोड़ा अच्छा पेंटिंग। हाँ, कौन सा कैसा सीखना चाहती हैं? मधुबनी का वही। हाँ, वही हम पूछ रहे हैं, सबका सजेशन ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें लोग सीखना चाहते हैं हेमा जी से, तो आपका क्या सजेशन है? वो जो मधुबनी का श्री कृष्ण का ही तो ज्यादा बनता है उसमें। वो रासलीला सिखाए थे, मैं सीखी थी उसमें, पूरा कंप्लीट किया हूँ वो बता। वाह वाह, हम लोग और भी दूसरा डिजाइन का रासलीला बनाएंगे बहुत जल्दी। हाँ, और कुछ मतलब पिकॉक या रासलीला का कोई दूसरा, वो कब से शुरू होगा? अभी तो हम लोग नेक्स्ट वीक तो पिकॉक कर रहे हैं शर्मिला जी। नहीं जानती हूँ तो। आपको नहीं पता है? आपसे आपको मैं लिंक भेज रही हूँ यहाँ पे चैट पे, आप देखिए। मेरा नाम है उसमें। देखना होगा अगर आपने। बोलिए। हम देखते हैं आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, निधि आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है? ओके, मैं उसमें रजिस्ट्रेशन किया था वो जो रासलीला में, और नेक्स्ट पीस में नहीं किया था रजिस्ट्रेशन। हाँ, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है? आज का क्लास मिस हो गया, फिर कैसे देख के वीडियो रिकॉर्डिंग होगा? अच्छा क्लास सृष्टि, मगर हेमा जी का अच्छा लग रहा था उस टाइम। आज ये ओपन हाउस ही है, इसी में हम लोग बस हेमा जी से बात कर रहे हैं। आज का क्लास नहीं है, वर्कशॉप नहीं है, आज बस ये बातें हो रही हैं हेमा जी से। मृगाक्षी जी, इस वर्कशॉप में तो सब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मेरे जैसा अनजान व्यक्ति क्या सीख पाएगा? अरे सिखा पाएंगी? आपको पता है हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? जब हम सब स्टार्ट किए थे हेमा जी के साथ, हमें कुछ नहीं पता था, और सीखते 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 अब हम थोड़ा बहुत जान गए हैं मधुबनी के बारे में। आप भी वैसे ही जानिएगा। तो मैं बना पाऊंगी ना आज? तो पूछिए हेमा जी से पूछिए, वो किसको सबको सिखा सकती हैं। जी हेमा जी सिखा पाएंगी? जरूर जरूर। ऐसे भी हैं कुछ जो नहीं सीख पाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो जिनको कुछ नहीं आता है। आप मेरा ये देखेंगे वो रासलीला का। सुषमा जी, हेमा जी ना जब भी किसी से नहीं बनता है, उनको टफ लगता है, एक रफ पेपर पे बार बार वो बोलती हैं कि नहीं आपसे बनेगा, आप इस बड़ा करके भी बनाती हैं कि मतलब कोई भी बना सकता है, कोई भी। हेमा जी ऐसे सिखाती है, मतलब इनके जैसा टीचर नहीं। I'll tell you something, सुषमा जी। के लिए नहीं आता है, वो भी सीखे हैं, उनको भी हम सिखाए हैं। मैं तो आर्टिस्ट को भगवान माना है हमेशा, और मैं करीब नहीं पहुंच पाई, इसलिए जानना चाहती हूँ कि आप कुछ कर पाओ। जी आप कुछ कह रहे थे नितिन जी? मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जो बोला ना कि हमको सिखा पाएंगे कि नहीं। जी। My mother is around 70 years old. She has never painted in life. She did a painting along with Hema Ji. Wow. So I mean, if she can do it, I'm sure she has never ever painted in life. Anyone can. Thank you. बिल्कुल ट्राई कीजिए। Thank you for the encouragement. बिल्कुल होगा, और टीचर अगर हेमा जी जैसा हो तो आई एम श्योर यू विल लर्न वेरी नाइसली। मैं पेंटिंग देख के उसमें देखा बहुत इंट्रिकेट स्टाइल है, तो मैंने आज का वर्कशॉप तो आपका ज्वाइन कर लिया। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, बट बहुत टेम्पटेशन हो रहा है ज्वाइन करने के लिए। आप फिनिश प्रोडक्ट देख के करते हैं ना, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा एक लाइन से होती है, और आप साथ में उनके लाइन पे लाइन बनाएंगे, अपने आप बन जाएगी। थैंक यू सो मच। हेमा जी बहुत सुंदर सिखाते हैं, मगर मैं बहुत अच्छे से सीख गया था उसमें मधुबनी। हाँ, इंटरेस्ट भी है तो इसीलिए मतलब सीखता हूँ, और क्या। That's really great. वंडरफुल वंडरफुल। हेमा जी सब आपकी तो टीचिंग की वाह वाह कर रहे हैं। आ गई आपकी स्टूडेंट हेमा जी, आदित्य की। कहाँ?
अदिति की बेटी जो भी छोटा बच्चा है वो हमेशा आके हेमा जी को बेटा है मैम। हाँ बेटा हमेशा ही बोलता था। नमस्ते। ओके दिखाओ चेहरा दिखाओ। कहाँ है अदिति? आप अपना वीडियो ऑन, हाँ ये है, देखिए सो क्यूट। कहाँ चल गया था तुम इतना दिन से? कहाँ थे? हेमा जी तुमको खोज रही थी। बहुत दिन हम खोजे हैं, कहाँ गया है? हाँ क्या बोले, नहीं सुनाई दिया। आपका नाम क्या है? What is your name? Tell. What is your name? Say it. It's okay, it's okay. चलिए वंडरफुल। सो हेमा जी आपके बच्चे भी आपके दीवाने हैं। बड़े को छोड़िए। तो मैं एक चीज दिखाना चाहता था कि ऑब्वियसली किसी का सवाल है तो आप पूछिए, तब तक मैं जैसे कुछ लोग जो हमारे साथ अभी रिसेंटली जुड़े हैं। किरण जी आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी। हाँ, I just wanted to say that she is a very good human being as well. Not only an artist, but being a very humble human being. Like कोई इतना उनको तंग भी करे ना, ये घड़ी घड़ी बताओ, and she doesn't really get irritated. बहुत And that is पेशेंस such है। a lots of patience and a real, I don't know, I get such good vibrations when I sit. We are not sitting like personally, right? But still you get such great vibrations with her, you know. So it's really a blessing to get connected to Catterfly, to Hema ji through Catterfly. It's a great blessing. Thank you. So good to know that, Kiran. Thanks a lot. Thanks a lot. And I just Hema wanted ji, to ask, if she Yeah, could yeah, just tell us little bit in detail how she would be doing the dupatta for next month. The class. Yeah. हेमा जी, किरण जी जानना चाह रही हैं कि दुपट्टा पे जो हम पेंटिंग करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो वही है जैसे हम पेंटिंग में करते हैं। तो पेंटिंग में जो हम कलर करते हैं पानी मिला करके उसको हम मीडियम मिला करके करेंगे। ओके। और ब्रश से, कोई आदमी करते हैं नीब से, लेकिन मैं तो करती हूँ ब्रश से। कपड़े पर नीब से नहीं होता, नीब फंस जाता है तो बहुत परेशानी होती है। राइट। और पेंट्स कौन से होंगे? पेंटिंग यही है, एक्रेलिक पेंट रहता है। ओके। और इसमें खाली मीडियम यूज होगा, पानी नहीं। पानी यूज करने से होता है कि एक बार धोइए तो धुला जाएगा, निकल जाएगा। जी। लेकिन मीडियम यूज करिए तो वो कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर नहीं जाएगा, कलर नहीं निकलेगा। और हेमा जी, जो लोग दुपट्टा यूज कर रहे हैं, दुपट्टा वो क्या मतलब कॉटन लें, कैसा थिक लें, थिन लें, कैसा लें? वो अपना सुविधा अनुसार करें। सब पर बनता है, सिल्क पर बनता है, कॉटन पर बनता है, नॉर्मल कपड़े पर बनता है, सब पर बनता है। तो उनका अपना जो पसंद है, जो उस पर काम कर पाएंगे वो अपना करें, ले अपना पसंद। इससे टसर भी करते हैं। टसर भी होता है। टसर पे भी आप कर सकते हैं, बट टू स्टार्ट विथ आपको उससे स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आपका बहुत कंफर्टेबल हैंड बैठा हो। हैंड बैठे। हाँ, तो जैसे सिल्क कर रहे हैं, हाँ फर्स्ट टाइम के लिए वी विल ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर कॉटन। मतलब क्योंकि आपका हाथ नहीं फिसलेगा, है ना हेमा जी? सिल्क ले लेंगे अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है और उसमें बार बार हाथ फिसलेगा तो वो उनके लिए सेट नहीं होगा। तो जो पहली तो आप अपना कॉटन ले लें, कॉटन पर में करें और उस पर हाथ अपना बैठा लें। उसके बाद अपना सिल्क बनाए, चाहे जो बनाए, खादी पर बनाए, जो जिस पर बनाए, लेकिन एक बार पहले अपना हाथ सेट कर लीजिए कपड़े पर। और जो पेपर में व्हाइट होना चाहिए। क्या किरण? प्रेफरेबली व्हाइट होना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्रीम भी है, सब कलर में। Off white also you can take cream color also, but to start with if you हेमा जी आप white लीजिएगा, off white लीजिएगा? नहीं हम तो क्रीम कलर लेंगे। क्रीम कलर।
लाइट कलर लेने में ये होता है कि उस पर सब कलर आप दे सकते हैं। करेक्ट अब वो कलर तो डार्क कलर रहेगा तो उस पर वो कलर नहीं खिलेगा, बहुत कलर उसमें नहीं आएगा। राइट उस लाइट कलर लीजिए तो उस पर सब कलर खिलेगा, और वो आप यूज कीजिएगा तो हर सूट पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कलर रहेगा। जो आप पेपर पे करवाने जा रहे हो, कौन सा पेपर होगा? जो वो पेपर पे हैंडमेड पेपर होता है, मार्केट से में हम खरीदते हैं। होममेड ये तो जो थिक पेपर है, वो तो थिक पेपर है ना। हाँ हाँ, anything which is Handmade. more than 250-300 GSM you can take that. जो पेपर आता है ना, जो भी आप वहां पे जब भी लीजिएगा, जो भी 250-300 से ज्यादा है, इज गुड फॉर एनी सच पेंटिंग। क्योंकि इनका पेंटिंग बड़े फाइन होता है। आपका तो बहुत फाइन बना है। One by one, sorry I can't hear. हाँ शर्मिला, can you tell me? जीएसएम पेपर में भी तो होता है, हम लोग जीएसएम में ही किए हैं। जीएसएम ही बोल रही हूँ, वो तो एक बस एक वेट है ना, कितना थिकनेस है पेपर का, वो आपको उसका बस नंबर से पता चलता है। तो कोई भी चीज जो 250 से ज्यादा है वो अच्छी है इन सब पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। दुपट्टे पर भी सेम एक्रिलिक कलर्स यूज होंगे? हाँ, दुपट्टे पे भी सेम एक्रिलिक कलर्स होंगे। और अगर आप लोग किसी को और क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक खजाना दिखाना चाहती हूँ, खजाना जो आप लोग को देखना चाहिए। एंड एनी ऑफ यू who are not aware about this, I want to give you a little bit of idea कि हम लोग जो ये सारा बस एक वर्कशॉप नहीं करवाते हैं ना। जब आप क्लासरूम अटेंड करते हो, क्लासरूम जो है वो हर चीज स्ट्रक्चर्ड है। किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है आप ये देखिए, ये मधुबनी का मास्टर क्लासरूम है। अभी तक जितना भी हेमा जी ने सिखाया है वो सबका पिक्चर, वीडियो, सारा कमेंट, everything, all the workshops are published here. So at any point of time, if you want to attend any of the past workshops, you can do that also. If you see this, you click on this, you will see the final image. So all of these workshops are properly structured here, which you can see, and the end painting is also published. All the videos, day-wise videos are there. If you see this, all 4 days videos are there. Every joy of dance with Radha and Krishna, this was the special workshop we did, and it's a beautiful. So this classroom is not just about picture and video. You can also submit your anything, all the comment, any questions you may have, you can put everything here, and we will connect with Hema ji. Manjula ji is there, who takes Madhubani sessions. She will help you throughout any of the past workshop also. So classroom, a master classroom is a one place where you can visit and see all the paintings which we have done so far. But I had attended your workshop, the Pichwai one, but now I can't see the recording because I was just learning and not completed my painting, so I can't get the link to revisit the video. We will connect with you, Sushma, on this, because generally we have the recording access, that duration of the workshop, and then we give more 2 weeks more extension of that. You must have, I think, crossed that extension. No, I joined recently, very recently. Oh, okay, then I'll connect with you on this, because if you have joined, you should you will able to see it. Okay, can I make a suggestion, please? Please, yes, Divya. The classroom. See, since the pictures and videos are extended, access is extended only to those who have registered. So if you could just post the final picture in the description, so that will help us to decide if we want to go opt in for any additional workshop. Yes, totally agree with you, and we are doing that one by one. So in the theme section, when the first section is open to all, so there we will put the final painting, and we are putting final painting. You can have a look at that and let us know. Okay. Yeah, I was searching for that in the Varli. Actually, I wanted to attend some, especially that basics one. There are 2, na? Yeah. So I wanted to decide. One I have attended, but I didn't remember which one. In fact, just while we are talking about Madhubani,
if you come here, you will see all the workshops which we have. You know, Varli, Kerala mural, miniature, FUD, everything. You can click on all these, any art form which you want to learn, you can let us know. We can extend the access to all of you. You can go through, and each of the art workshop is listed here. Krishna with cow, which is happening right now. Then Kamal Tali, which we did before, Srinachi, everything, all the art form, whichever we is under Catterfly Art and Culture, what we are doing is mentioned here. In fact, what I would suggest is for everyone, and maybe they should get in touch with Sandhya or Nidhi, you should actually first of all join all the art master classes so that you know what all is there across different art forms. Right? Since we have like 10 plus art forms, within each art form we have like so many things. For Madhubani we have like 30, 40. For Varli also we have more. In fact, what all you see, actually we have far more than that. We're actually trying to bring it under the master class. Same way, Kerala mural, though we started 6 months ago, we already have like 8 to 10. So that's why we keep on sharing the link of the master classroom with all of you in the WhatsApp, so that when you join, then you know what all is there inside that. And I know that there are a lot of WhatsApp messages which go back and forth, and hence it's easy to miss it. And that's why we try to send it on the emails also. So please do look out for these things from Catterfly. When we say that there's a master class that you can join, please click on that and join. Then within that, I think it's a great suggestion from Divya that within the theme description, we will post the final picture also, so that all of you know. Yeah, thank you. Thank you. So should we wrap up now, Nathan? I mean, it's been some time. And great work you are doing. Really appreciate. Great. So we'll definitely like to wrap up, as well as like to invite all of you on the upcoming workshops by Hemaji. We do spend a lot of time curating these workshops, by the way. So these workshops ideas, we obviously don't get it suddenly in the middle of the night. We do spend a lot of time curating these themes, discussing it. In fact, all of you, as you did now, to share your thoughts on what all you would like to learn, please keep doing that, because that is very, very important for us to know what you want to learn as well. Okay, so with that, हेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा बात करके, काफी अच्छा लोगों ने सवाल पूछा, आपने इतना अच्छे से उसको समझाया, और ये बस सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके साथ ही थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, और आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। बाय बाय। Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Vinita ji, you are saying something? I was just saying that art has such a therapeutic effect on people that it just changes you. That changes you. Yeah, I mean, it gives you a lot of peace and calm. How has it changed you, Vinita ji? What change has it bring to your life? Actually, I used to paint long time back, and after this, when I was working, and after I had my my children and everything, art kind of took a backseat. So I was always interested in art, but one of the positive things that happened in the COVID time, while being in so-called lockdown mode, one thing I was able to do because online was get back to art. And it's wonderful. It just makes me feel so good. It gives you no time for brooding. It gives you no time for, getting into depression, kind of, after which is supposed to be in post-COVID phenomena. It's really, really, really good. I would recommend people to do art. And like somebody was saying just now that they can't paint, I don't think it's like that, because you need to try it. You need to put your hand at it, and that is when you know what art is. To me, it has really helped me. It really helped me tremendously. It keeps me busy. It keeps me away from a lot of trouble.
That's true. especially my post retirement was a hobby, and attending these classes has helped me revive my interest in art. That's Wonderful. what I वंडरफुल। हेमा जी, वेदिता जी बोल रही हैं कि कैसे आर्ट उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया है वो रिटायरमेंट के बाद, और कैसे उनका दिमाग आर्ट में इतना बिजी रहता है कि कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि आप क्रिएटिवली किसी चीज को यूज कर रहे हैं, अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि आर्ट एक तरह से थेरेपी है, जो कि हम लोग के दिमाग को अच्छा और शांत रखता है। तो इस तरीके से एक चीज बोलूंगा, एक चीज दिखाना चाहूंगा। जो विनीता जी आपने जब बात की, उसमें एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, जो आप जैसे लोग ने हमें फीडबैक दिया था, और उसके साथ ही हम ये बंद करेंगे वर्कशॉप। ये देखिए आप लोग। So with that, thank you so much. That's exactly what I meant. This is what it is. I agree with every single thing that has been said in the video. Thank you, Hema ji, Nitin ji, Mridakshi ji. नमस्ते हेमा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके पेंटिंग्स को देख के भी। जरूर आपका वर्कशॉप करूंगी, पर आपका दुपट्टा देखा नहीं है, तो उसमें काफी इंटरेस्ट मतलब है। तो it will be interesting workshop. Do you know how she teaches? So you know that is another beautiful learning you'll have from her. So all of you are welcome in our upcoming workshop, and we will publish again. Do join in and let's support in this entire initiative, which is called Catterfly Art and Culture with traditional artists. Thank you everyone. Thank you हेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए, एंड आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर, नमस्कार, बाय बाय। Namaste, thank you. Bye bye. Bye.